I am an architect by education, and yes. Before I begin my presentation, I want to speak about how I started illustrating. I बचपन से I draw, and उसके बाद when I was like 12 or 13, I started an online business by the name of Smart. मेरी बहन ने उसका नाम रखा था. It was Sabine's Marvelous Art. And I would make customized gifts, mugs, t-shirts, etc. And I would just sell them online. And this one guy from Canada, he was like कि तुम मेरे लिए mug बनाओ. Mug मेरा नया product था. And he was like कि कितने का बनेगा? And I was like, मेरी supplies आएंगी 1500 रुपए की porcelain जो पेन होते हैं, और इसमें बहुत सारे mugs बना लूँगी. तो ऐसा करो तो मुझे 1500 दे दो. मैंने उसको ये पूरी story बता दी. I was 13, 14. And he was like, how about I give you 10,000 rupees? And I was like, why? Then I told my mother, and he was like, इसको कोई बेवकूफ़ बना रहा है. But then Western Union के through 10,000 रुपए आ गए. ऐसे मैंने बहुत सारे gifts बनाए 2-3 साल तक. फिर then I used to visit a website called Misso and Friends. It was a social media platform for young girls age 8 to 16. तो उधर I used to पहले visit the website, but when I was 17, वहाँ पे intern का tab दिखा, clicked on it, applied, internship मिल गई. 3 महीने बाद उन्होंने मुझे hire कर लिया at 60,000 per month पे. I used to work 2 hours a day, and I used to get like paid very well. All throughout my college, I did that. All throughout, अभी भी मुझे 10 साल हो गए इस website से connect हुए हुए. उसके through I learned design, animation, SEO, coding, website development. उनको मैं हर चीज़ बोलती थी, उनको कहते थे ये आता है, and I would say हाँ आता है. And I would just quickly watch tutorial and do that thing. अपना job करती थी और पैसे मुझे मिल जाते थे. I was able to fund my education. So then when university की बात आई तो I applied for architecture, and I became an architect. And while doing architecture in the last year of my education, I bought a Wacom tablet. बहुत शौक से 30,000 का था, पैसे जमा किए, and I was like ठीक है ये लेना है. Wacom tablet लैपटॉप से अटैच किया, एक लाइन लगाई, टेढ़ी लगी, बहुत दुख हुआ, ऊपर रख दिया Wacom tablet और टच नहीं किया for like 4 months I guess. Then COVID आया. I was like अच्छा ये तो सड़ है पड़ा हुआ, इसको निकालो. ड्रॉ किया तो then that's how I started illustrating. उसके बाद पोस्ट करना शुरू किया, Redbubble पे पोस्ट किया, because I used to draw for an indie band, The National. They used to like my artwork a lot. बहुत सारे लोग थे वहाँ पे. They were like कि आप अपना काम पोस्ट करें, will like buy it. Redbubble पे मेरे काफ़ी सारे worldwide clients हैं. उसके बाद I bought an iPad. I was like time for an upgrade. iPad आया, Procreate डाउनलोड किया, 3 महीने तक ट्यूटोरियल्स देखे थे. तो फाइनली जब US से iPad आया, I was like ठीक है time to draw. एंड जब ड्रॉ किया तो देन अच्छा नहीं बना. देन फिर अगेन 2 महीने के लिए फिर मैंने iPad ऊपर रख दिया, देन निकाला एंड देन ड्रॉ करना शुरू किया. सो उसके बाद कोविड आ गया, एंड आई वाज नॉट एबल टू परस्यू आर्किटेक्चर बिकॉज यू कांट गो आउट, यू कुड नॉट गो आउट. सो आई स्टार्टेड इलस्ट्रेटिंग प्रॉपरली एट दैट टाइम, एंड अब मुझे 5-6 साल हो गए प्रॉपरली इलस्ट्रेट करते हुए. तो आर्किटेक्चर मैं अभी भी नहीं कर पाई इतना ज़्यादा, लेकिन आर्किटेक्चर और इलस्ट्रेशन का क्रक्स वो एक बन चुका है, और उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट डेवलप हुआ. मैंने बहुत ज़्यादा कमर्शियल प्रोजेक्ट्स किए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वर्ल्ड बैंक, वीज़ा, बहुत सारी कंपनीज के साथ काम किया, लेज, कुरकुरे, पेप्सिको, एक्सेट्रा. बट दिस प्रोजेक्ट इज़ वन थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट. इट कम्स फ्रॉम अ वेरी पर्सनल प्लेस, and so the title of my presentation is Why Cities Deserve to Be Documented. And for a minute, I want you to do this exercise. I want you guys to close your eyes. And I want you to picture a place you love that's gone or changed so much that it no longer feels the same. Imagine what's missing. Is it the people? Is it the trees? The feeling of safety? The sound of laughter? And then you can open your eyes. So this missing piece, a place, a public place, or a place not feeling like how it used to be, this missing piece is my work, is what my work is about. So it's just like the place is there, the physicality of it is there, but the emotional, in the emotional sense, उसमें कुछ नहीं है, कुछ missing है. तो ये मेरी अम्मी हैं, और we used to go to parks a lot and amusement parks a lot. और मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा अपने बचपन की कहानियाँ बताती थी कि
ईद है एंड वो काफ़ी लोअर इनकम फैमिली से बिलोंग करती थी, तो उनके बड़े भाई हर ईद पे रस्सी लेते थे और पार्क जाते थे और वहाँ पे रस्सी को दरख्त से लगा के एंड दे वुड स्विंग फॉर आवर्स। एंड आई रियली लाइक दैट कि एक पब्लिक स्पेस की ओनरशिप इतनी, यहाँ पे पार्क्स बहुत अच्छे हैं लाहौर में, आई एम फ्रॉम कराची, सो वहाँ पे पार्क्स में दरख्त नहीं है, एक्टिविटी नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको वेंसडे के 2 बजे भी बहुत एक्टिव पार्क दिखेंगे, कराची में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ बहुत ही कम पब्लिक स्पेसेस इस्तेमाल होती हैं बिकॉज ऑफ लाइक सेफ्टी रीजन, टेररिज्म की वजह से प्रीवियसली लाइक अब लोगों के मिजाज में भी नहीं है, तो बहुत चंद प्लेसेस पॉपुलेटेड होती हैं। सो माई मदर वुड टेल मी अबाउट दिस प्लेसेस कि लाइक लांडी में फिर वो जहाँ रहती थी तो पब्लिक सिनेमाज होते थे, पर्दे के उस पार आदमी, पर्दे के इस पार औरतें, तो वो एक सेफ एक सिटी था। एंड उनकी वजह से मुझे शहर के बारे में वो बातें पता लगी दैट आई वुड थिंक ओके व्हाई डिड आई नॉट हैव एक्सेस टू दिस सिटी, दिस इज माई ब्रदर इन अ पार्क, दिस इज माई ब्रदर एज वेल। So I started looking at my own experiences where like you know एक space जो मेरे लिए बहुत important थी वो थी समंदर। तो समंदर पे ऐसे होता था कि लाइट गई हुई है, समंदर चले गए, रात के 3 बज रहे हैं, तेज़ बारिश हो रही है, घर पे लाइट नहीं है, माई फादर वुड टेक द कार आउट, वुड गो टू द सी। तो रात के 3 बजे बारिश में समंदर एक्सपीरियंस करना इज अ वेरी, इट्स लाइक आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब इट, बट द पॉइंट इज़ दैट समंदर, पार्क्स और जितनी भी वो लेजर स्पेसेस हैं उनसे मेरी ख़ास एक एसोसिएशन, एक बहुत ज़्यादा अफेक्शन वाला रिलेशनशिप था। तो मेरी फैमिली फ़ोटोज़ में से ये एक तस्वीर है फ्रॉम मज़ार कायद। दिस इज़ माई फैमिली दैट आई हैव व्लॉग्ड आउट एंड आई वांट यू टू लुक एट द एनवायरनमेंट, देयर आर सो मेनी पीपल, इट्स फ्लडेड। And then this is an image from a couple of years earlier. These are my 3 siblings, again vlogged out. And people are behind, and the environment behind is also, again, it's very populated. There's so many people, so much activity. So there is a thing in architectural research. Some people like to do it in this way, that to understand a public space की nature, importance, उसकी behaviors and activities, आप बहुत आसान तरीका है और कोई भी कर सकता है कि आप इंस्टाग्राम पे जाएं, आप वो जगह, वो लोकेशन को लोकेट करें, एंड देन यू लुक एट द इमेजेस एंड इट्स लाइक अ पब्लिक डोमेन, पब्लिक पॉपुलेटेड, एक आपको पूरी एक रिजर्वॉयर मिल जाएगा ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड आई डिड दैट। if you look at it, all the environments, all the backgrounds are empty, and that is also like and these are just a couple of images, आपको बहुत images ऐसे मिलेंगे रिसेंट में। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिफरेंस था कि कैसे कोई जगह इतनी चेंज हो सकती है और क्या चीज़ें चेंज कर रही हैं, क्या फैक्टर्स हैं। दिस इज़ कराची सी व्यू एंड यहाँ पे 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी। समंदर में लोग हैं, यहाँ पे आप यू कुड गेट अ मसाज, इंडियन मूवी स्टार्स के पोस्टर्स होते थे जिसके साथ खड़े होकर आप ऐसे तस्वीर ले सकते थे। देन समंदर के अंदर चेयर्स होती थी, 10 रुपये किराया देखिए, 5 रुपये किराया देखिए, आप मज़े से बैठ सकते थे। देन बाइनोक्यूलर्स, दूर तक देखना है। सो द सी स्ट्रिप यूज्ड टू बी एक्टिव फ्रॉम, इट्स नॉट दैट विजिबल, बट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स टू हियर ये सारी एक्टिविटी हो रही होती थी। And that's how I remember it as a kid. Like कि मेरी बहुत vivid memory में कि ये सारी जगह बस भरी होती थी लोगों में, no matter what time of the day. Eventually, because of privatization, यहाँ इमार बन गया, ये DHA है, तो उसकी वजह से उनको लगा कि यहाँ poor people नहीं आ सकते हैं. So all of this area was blocked out and was like a chunk of it was privatized, like this area. And then all of this also became very strict. तो यहाँ पे वो हॉकर्स नहीं हो सकते थे, यहाँ पे बिजनेसेस नहीं हो सकते थे, तो यहाँ पे वो एक्टिविटी लिमिट हो गई जिसकी वजह से लोग आते भी थे। तो वो गहमा गहमी अब जस्ट शिफ्ट हो गई है एट दिस एरिया, इट्स जस्ट इन दिस स्मॉल स्ट्रिप। तो वो एक पियर टाइप का एरिया है जहाँ पे आप वॉक करके, बाजार है बस छोटा सा, जहाँ पे आप आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक इतनी बड़ी स्ट्रिप थी जहाँ पे डिफरेंट इकोनॉमिक, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग यहाँ आते थे, वो सिर्फ उधर तक शिफ्ट हो गई जहाँ पे अब वो लोग आते हैं जो लोअर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के होते हैं। एंड जो मेरे जैसे जो तबके के लोग हैं या मुझसे ऊपर के जो लोग हैं, उनको एक वियर्ड सी हेसिटेशन महसूस होती है कि वहाँ तो ऐसे लोग आते हैं। तो सी व्यू इज़ ऑल्सो लाइक कि वो मैले लोग आते हैं या गरीब लोग आते हैं, तो ये बहुत एक डिस्कस्टिंग सा एक सेंटिमेंट है। तो इतनी बड़ी जगह का खो जाना, स्पेशली कराची जो समंदर की वजह से जाना जाता है,
So that is what I wanted to document, ki like what is it that we don't have anymore, what it used to be, and how can we archive it or preserve it. So I started this like illustration series. मेरा style digital painting के जैसा है. I documented, at first I was trying to like document what my mother used to talk about, and I wanted to go back into the dreaminess and my childhood memories कि like क्या था वो. And मैंने अपने लिए बनाया, exhibit भी किया, but then जब मैंने इसको post वगैरह किया, लोगों के comments मिले, they really connected with it कि yes, the sea used to be like this, and all the elements that I was talking about, so that I like that I इसके अंदर मैंने वो बनाए, इसके अंदर मैंने capture, उसका essence capture करने की कोशिश की समंदर की. Then how it used to be, कैसा वो populated होता था, dreaminess, softness, उसकी एक quality को capture करने की कोशिश की जो एक magical सी quality थी. If you would come there, and how everything, you would forget everything, और उसकी expensiveness. मेरी खाला पंजाब में रहती हैं, तो वो आई कराची, and मेरी अम्मी उनको समंदर लेके गई, उन्होंने कहा कि समंदर की मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी हैं. And then वो जब वहाँ गई तो उन्होंने इतना बुरा समूह बनाया, and she was like कि इतना बड़ा तो हमारे यहाँ दरिया होता है, इसमें क्या खास बात है. So but like it is a very overpowering body. Then again like जैसे लोग dress up होकर आते हैं, it's like ईद की तरह जानवर जैसे dress up होते हैं. Then like the quality की different मौसम के हिसाब से, जैसे मॉनसून का ही टाइम है तो कैसे आसमान और waves जो है वो ग्रे हो गई हैं पानी. तो देन उसके बाद सनसेट का टाइम एंड आइसोलेशन लोगों के साथ और आइसोलेशन में. सो ऑल दीज थिंग्स आई एम, दिस सीरीज इज ऑन गोइंग एंड आई एम एक्सप्लोरिंग ऑल दीज थिंग्स इन इट. अ मोमेंट ऑफ आइसोलेशन, अ मोमेंट ऑफ पीस, सेरेनिटी. उसके बाद औरत मार्च का मुझे एक पोस्टर बनाना था, तो आई वांटेड टू मेक समथिंग लाइक समंदर का एक बहुत ही ख़ास एक पहले चीज़ होती थी कि लाइक बहुत सारी चादरें बिछाकर और बिरयानी का एक पतीला बनाकर एवरी फैमिली वुड बी लाइक हैविंग अ पिकनिक देयर. सो दैट आई वांटेड टू लाइक रियली कैप्चर के एक औरतों के पिकनिक. तो ये सारी चीज़ कि एक शहर के एसेंस को कैप्चर करना, या कोई भी जगह आपने चूज़ की जो कि मेरे लिए लेजर स्पेसेस हैं, स्पेसेस ऑफ जॉय हैं. और वो एक इस वजह से भी था कि कराची जितना उसके खौफ हरास है, किसी के सामने भी कराची का नाम लें तो किस तरह का खौफ हरास आता है और उनको एक अनकम्फर्टेबल फीलिंग आती है. आई वांटेड टू कैप्चर अ मोमेंट ऑफ लाइक गुडनेस देयर, अ मोमेंट ऑफ जॉय कि वो क्या है और वो कहाँ है और वो कितनी किल्लत में है और वो कितनी अब प्राइवेटाइजेशन और उसकी वजह से ये कमर्शलाइजेशन की वजह से, ईमार जैसे प्रोजेक्ट, बहरिया टाउन, DHA जैसे प्रोजेक्ट की वजह से वो कितनी जो है डिमिनिश होती जा रही हैं. वो पब्लिक स्पेसेस जो कि चंद हैं, लाहौरीज वुड नॉट बी एबल टू रिलेट इट बिकॉज यू हैव सो मेनी ब्यूटीफुल स्पेसेस एंड यू डू यूटिलाइज इट, बट कराची में इतनी जगह है ही नहीं. तो वो भी जब कम हो तो फिर कहाँ जाएगा. तो वो एक सफोकेशन, एक सेंस ऑफ सफोकेशन बीइंग अ कराचीite, that is what I wanted to like translate in my project कि this is what we are missing. उसके बाद इसकी एग्जाम्पल फ्रॉम हिस्ट्री, फ्रॉम लाइक आई एम नॉट एन इम्प्रेशनिस्ट बट दिस इज मोनेज रियन चर्च सीरीज. उसके अंदर दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. लाइक मोने इज अ मास्टर. So what he did was that he went to France twice in his life, twice to capture this cathedral. Is it playing? I have to. So he painted this cathedral over 30 times, and he wanted to capture what it used to be like, and in all कि वो हर तरह से उसको कैप्चर कर सके different मौसम में, whether it's cloudy, whether the sky is dull, whether it's sunny. And he used to say कि it changes every time, it changes, even the stone changes. And like stone कितना एक permanent, उसकी कितनी permanent nature है, कितनी solid nature है. But like him saying, और वो अपने जैसे पेंटिंग में एक फ्रेजिलिटी उसकी दिखाता है कि with the weather the building changes, it diminishes, it dissolves, it becomes present. तो ये मुझे किसी एक चीज़ से इतना प्यार करना या उसको इतनी इम्पोर्टेंस देना कि आप उसको बार बार देखें कि उसको क्या है और उसको हर रंग में कैप्चर करें. दैट आई फील लाइक इज़ द रीज़न वी डू नीड टू कैप्चर एंड डॉक्यूमेंट आवर सिटीज़. बिकॉज ये जो यहाँ पे इतनी एक्टिविज्म नहीं है इन टर्म्स ऑफ लाइक सिविलियन, तो हमें ही इस बारे में ख्याल रखना है और हमें ही उसको देखना है कि ये कैसे होगा. तो in that sense it's really important to capture, to document
these cities, our cities. So this is the set of his whole like 30 paintings, all capturing the same place in very different light every time. Then again, capturing the city also becomes a, पहले भी जो क्रिएटर्स हैं और डिज़ाइनर्स जो हम स्पीकर्स हैं उन्होंने बात की है कि इससे आपका अपना एक ओरिजिनल स्टाइल सामने आ सकता है, आपकी काम में ओरिजिनलिटी आ सकती है, ज़्यादा रिच हो सकता है नहीं, डेफिनेटली होता है, बिकॉज it gives you like good references, good points, behaviors जो कि rooted हैं आपके context में. हम bathing suit पहनकर बाहर नहीं जाते हैं या beach towel नहीं बिछाते हैं. This is a very lovely picture, I guess. It shows the joy a kid is having like on the beach, and like I would not be able to imagine it if I were to draw the sea without any reference, right? And the overwhelming feeling that the sea has on you, like your आपका हाथ आपके waist पे, and you're just like lost in the beauty that is the sea. Then again, like वो दो बच्चे they were having a mud fight. So all these things I found really interesting. तो जगह का क्या behavior है, जगह कैसे behavior dictate कर रही है और behavior उस जगह को कैसे बना रहा है, all these things when it comes into your work, it enriches it. Then so a couple of more references. Did not want to take picture of this. तो इसमें मैंने भी बनाया नहीं. I want to make it. पर इसमें ये था कि they were like 4 kids. They were bald. They were aged like 4 to like 8. And these bald kids, and they were like उनका एक भाई था यहाँ पे छोटा सा जो 3 साल का था maybe. And वो चारों बच्चे they're like sliding and lying in the floor in the water. And they are immersed in the water, and they're so excited, and they're calling their brother to come inside the water and experience it. But the kid was so hesitant, he was so shy, and like this moment of like feeling something for the first time, or experiencing something for the first time, or like having like that posture I really like, someone really like not caring about कि गंदे हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे. So वो सारी चीज़ें जो जगह कैरेक्टर निकाल के लेकर आ रहे हैं, जगह बिहेवियर डिक्टेट कर रहे हैं, and vice versa as well. So this I'm really interested in. तो जैसे इस पेंटिंग के अंदर if I would like to point some things out, the chairs again, the fact that आप हर किसी को पीछे से देखेंगे लेकिन आपको फिर भी समझ आएगा कि वो बंदा क्या महसूस कर रहा है. ठीक है. उसके अलावा जैसे ये कैरेक्टर है, ही इज़ लाइक स्टैंडिंग ऑन ए क्रेट, पेप्सी क्रेट, टू लाइक रियली टू अवॉइड लाइक नीचे पानी या कीचड़. सो ऑल दीज थिंग्स, लिटिल डिटेल्स, एंड आई डू प्लान टू मेक माई वर्क मोर interesting with all these like enriching like characters. People taking selfie, क्या activity हो रही है, क्या vendors हैं, ये पापड़ वाला है, like beautifully decorated camels, 2 लोग जो उनको witness कर रहे हैं, couple को picture लेके देखते हुए. And then मौसम कैसे change करता है समंदर को. समंदर शायद मैंने से 5-6 बार आपको दिखाया होगा, but every time it changes, every time it becomes something else, and I wanted to document that. And I think or now that I've shifted to Lahore, and I see that like Karachi कितना different है उससे, in a sense कि like वो नहीं है ऐसे जिंदा जैसे कराची की जगह, जैसे लाहौर की जगहें हैं. So now that the need is even more to like preserve it, to archive it, and to like जैसे मेरी अम्मी मुझे बताती थी उनका verbal तरीका था, I want to tell it to people, I want to scream कि like this is what these places used to be. So that's all. Thank you so much. If there are any questions, I would be happy to answer. Yes, absolutely. So जब मैंने आपको 2-3 पिक्चर दिखाई थी पहले, जैसे ये वाली है अलादीन पार्क की, and I think this picture is a painting itself, I guess. So this I do plan to make Aladdin Park because it's like also like वो भी खत्म, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गया है वो. Then there is Joyland that I want to make, because Joyland was the first amusement park of Pakistan, of Karachi, and it's very old. And that उसका ये है कि बहरिया टाउन का जो आइकॉन टावर है वो बिल्कुल उसके जो है बराबर में बन गया है. एंड उसकी इतनी प्रेजेंस है, उन्होंने वो वहाँ पे एक ओवरपास भी बनाया है, ब्रिज बनाया है वहाँ पे, उन्होंने अब्दुल्ला शाह गाजी को रीडिज़ाइन किया है.
तो उन्होंने उनको भी कहा था कि ये आप जगह हमें दे दें, बट आई एम ग्लैड द फैमिली डिड नॉट गिव इट अप। एंड तो वो भी जगह अब ऐसी कि जोयलैंड जो पहले इतना विजिबल होता था रोड से या बाहर से, वो अब नहीं है, और वो भी कॉर्डन ऑफ हो गया है, तो वो उसकी भी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा म्यूटेड हो गई है। तो नेक्स्ट इज़ लाइक जोयलैंड, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू मेक, दैट इज़ समथिंग आई एम वर्किंग ऑन ऑलरेडी। एंड हिल पार्क, सफारी पार्क, सो मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा इस तरह के, और ऑल्सो लाइक आर्किटेक्चरल लेंस से भी है, बिकॉज आई डू रियली लाइक प्लेस, और मैं प्लेस और स्पेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। So some of the places are these. बाकी मुझे बाजार में बहुत ज़्यादा, तो any place that has some public nature, that I'm really interested about, because community is like a big part of my work. Yeah, because people have done a lot of southern and all those areas. So we बात है कि CBO जो है उस तरह से rent नहीं किया गया जैसे you have. Yes. I mean, because southern has this old architecture and all these other places, film hall and all these other. Yes, absolutely. I guess कराची को कोई भी पार्क्स के लिए नहीं याद करता। अच्छा, ये भी जगह जो है ये स्ट्रिप मैकडोनल्ड्स की वजह से भी कम हो गई, उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया अपना पार्क। सो ये कोई बात नहीं करता, बिकॉज वो इस्तेमाल ही इतने नहीं होते हैं। तो अब ये है कि उनको इस्तेमाल करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो बस that's all. Any other question? Very difficult to see in this light. जी बताइए। I have made a couple of things about Lahore, because अब मैं लाहौर शिफ्ट हो गई हूँ पिछले 3 साल से, एंड यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जिन्ना बाग इज़ माई फेवरेट एंड आई लव इट, द कैरेक्टर दैट प्लेस हैज़, द पीपल, हमेशा वहाँ पे फैमिलीज़ होंगी। अच्छा, वो जिन्ना बाग की एक बात मुझे इतनी अच्छी लगती है, जो बीच में एक रोड है और वहाँ पे 40-year-old couples would be like walking hand in hand, arm in arm, and I feel like romance जो है वो लाहौर में you experience it, it's very visible. You won't be able to maybe see it if you're from Lahore, but ऐसे कराची में इतनी किल्लत है इन चीज़ों की कि like you really like see it. तो लाहौर मुझे बहुत पसंद है इस वजह से, and I have made a couple of work, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं इस जगह से नहीं हूँ तो मेरी से क्या है, मेरी कितनी बात की वैल्यू है, तो वहाँ में मैं रुक जाती हूँ, वहाँ में मुझे कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। सो यहाँ तो इस वजह से, बट आई डू प्लान टू मेक वर्क। अब मेरी शादी हो गई है यहाँ पे, तो मे बी मुझे ज़्यादा यहाँ फील हो कि मैं यहीं की हूँ। सो मे बी आई विल बी एबल टू मेक मोर वर्क, बट आई गेस लाइक यस, और जगहें डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एनीथिंग एल्स? Shalimar, absolutely. It's very gorgeous, and from the and from the architectural point of view, if you guys know, उसका जो वो पूरा एक व्यू है, टेरेसेस का किसी को सिग्निफिकेंस पता है? आपको पता है? वो ऐसे है कि जैसे यहाँ पे आप जब एंटर होते हैं यहाँ से, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका एक टेरेस, उससे आप उतरते हैं, देन नीचे एक थ्रोन आता है बादशाह का, एंड देन उसके बाद एक पॉन्ड है, और पॉन्ड के दरमियान एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे रक्स होता था, ठीक है, बादशाह के लिए, बादशाह की विजिबिलिटी के लिए। और यहाँ पे रक्स के दोनों तरफ प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे संगीत होता था, म्यूज़िक के लिए वो जगह हैं, और उनके अकूस्टिक जगह, उन प्लेटफॉर्म्स की अकूस्टिक भी उसकी वजह से कि बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी स्पीकर वगैरह तो होते नहीं थे उस वक्त, तो कैसे बादशाह तक आवाज़ पहुँची। देन व्हेन यू स्टेप डाउन, तो नीचे वो पूरा कोर्ट शुरू होता है जो कि पब्लिक का है, पब्लिक का दरवाज़ा भी वहीं था। बट पब्लिक की यहाँ से, मेरे यहाँ से जो बादशाह का थ्रोन है वो इज़ लाइक 15 feet हाई, एंड उसके नीचे जो मेरे वाले कोर्ट के सामने, आई डोंट नो हाउ वेल आई एम एक्सप्लेनिंग इट, बट सबसे जो पब्लिक वाला कोर्ट है उसके सामने एक जगह थी जहाँ पे इस लाइक अ क्यूबिकल इफ यू सी, एंड उसमें बहुत सारे ना छोटे छोटे खांचे, और उन खांचों के आगे अंदर ना दिया रखा जाता था हर खांचे में, तो लाइक मे बी 150 दियास, एंड उन दियों के आगे ऊपर वाटरफॉल की तरह ना पानी गिर रहा होता था। तो वो जो पानी और लाइट और रोशनी और आग का जो कॉम्बिनेशन था, इट वुड मेक दिस ग्लिमरिंग स्पार्कली इफेक्ट that would make, so if this is the room I'm talking about, तो बादशाह का throne बिल्कुल right above it was placed, बादशाह का throne
So it would look like the bacha is like floating on like सितारों के ऊपर, और वो सितारों की महफिल है, right? और उसके ऊपर वो बादशाह है to make him feel godly. So like tell me about romance and grandness and like royalty. So obviously these things deserve कि इसको कोई देखे, कोई बनाए. And अब मुझे illustration idea आ गया है इसको बनाने के लिए, but yes. Sound absolutely, yes. So all these like little details, तो उनको किसी ना किसी तरीके से प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये शायद सबको नहीं पता हो. ये सीक्वेंस जो बनाई गई थी आर्किटेक्चर, वहाँ पे आपको टूर देते हैं तो आपको बताते हैं, बट like making something, turning it into a visual, illustrating it, visualizing it for people who don't know this, that is what I'm talking about. Chale, thank you so much.